Good morning, dear students. Today we will discuss Niti Ayog, a subtopic from Chapter 2, Plant Development of Book 1, that is from Contemporary World Politics. In this chapter, this topic has been added according to the new syllabus prescribed by CBSE. Dear students, as we know that after independence, our government had constituted a planning commission for the new strategy and developmental schemes for formulation for the country, to formulate for the country. But after some time, or we can say not after some time, in 2015 this planning commission is scrapped by the government, by the NDA government. Now this planning commission is with a new face known as Niti Ayog. To foster cooperative federalism through structured support initiatives and mechanism with the states on a continuous basis, recognizing that strong states make a strong nation. The National Institution for Transforming India, also called Niti Ayog, was formed via a resolution of the Union Cabinet on 1st January 2015. Niti Ayog is the premier policy think tank of the Government of India, providing both directional and policy inputs. In this slide, you can see the main topics of this subtopic would be discussed in this slide. So first of all, we will discuss a brief history of Planning Commission. As we can see over here, Planning Commission was an institution formed in March 15, 1950 by Government of India. We are here talking about Planning Commission, not Niti Ayog. It was established in, as we all know, that in 1950, first time India have been given a status of a democratic country. Our constitution was implemented from 1950, right? 26 January 1950, and after that a planning commission was constituted by Government of India. It was established in accordance with Article 39 of the Constitution, which is a part of directive principles of state policy. It was formulated India's 5-year plan, right? Indian government constituted this planning commission to formulate India's plans फर्स्टली फॉर 5 years. सबसे पहले 5 साल के लिए प्लान बनाया गया, जिसको हम हिंदी में पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं. It means Planning Commission was now renamed as Niti Ayog with some changes. Question arises, why does India need a change from Planning Commission? इसको स्क्रैप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? इतने सालों से जो एक इंस्टीट्यूशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन देश के लिए प्लानिंग बनाती आ रही थी, काम करती आ रही थी, उसको हमें बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? नाउ वी कैन सी इंट्रोडक्शन ऑफ नीति आयोग. हमें इसकी ज़रूरत, बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई वी नीड टू चेंज द प्लानिंग कमीशन एज नीति आयोग. आगे चलकर जब हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड और यू विल केम टू नो दैट व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड इट. नीति आयोग इज फॉर्म्ड वाया एग्जीक्यूटिव एक्शंस बाय द यूनियन. नीति आयोग को
जो है हमारे देश की सरकार ने बनाया इसको, लेकिन इसके लिए जैसे कि एक लॉ फॉर्म किया जाता है पार्लियामेंट में प्रॉपरली 2/3 मेजॉरिटी से पास किया जाता है, ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। इट मीन्स इट इज़ अ नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। इसको बस एक आपस में जो यूनियन गवर्नमेंट थी उन्होंने आपस में सलाह करके बना दिया, इसके लिए पार्लियामेंट में कोई बिल पास नहीं किया गया। ऑन 1 जनवरी 2015 इट इज़, बेटा ये एक गवर्नमेंट की एडवाइजरी बॉडी की तरह है, थिंक टैंक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, यानी कि गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे लोग देश की प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए सलाह देंगे अपनी। तो क्या है नीति आयोग, क्या है, एक थिंक टैंक पॉलिसी है गवर्नमेंट की। इट इज़ अ नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, जैसे कि मैंने बताया कि इसके लिए कोई बिल नहीं पास किया गया था, तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। The stated aim of Niti Ayog's certain creation is to foster involvement and participation in the economic policy making process by the state governments of India। इसमें जो चेंज किया गया था, मोदी का कहना था कि जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था उस समय की ज़रूरत के हिसाब से ठीक था, लेकिन अब चूंकि इंडिया बदल रहा है, बहुत एडवांस हो गया है, तो कुछ न्यू इनोवेशंस और न्यू डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत है, तो हमें इसमें कुछ बदलाव करने होंगे। अभी मोदी जी हमेशा नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उनका कहना था कि देश के लिए अगर कोई डेवलपमेंटल स्कीम्स बनाई जा रही हैं तो हम इसमें सभी को शामिल करेंगे और सभी लोगों की, और जो लोग बहुत अच्छे आइडियाज़ देते हैं उनके आइडियाज़ के ऊपर हम काम करेंगे। One of the important mandates of Niti Ayog is to bring cooperative competitive federalism and to improve center-state relations. In this Niti Ayog, government will work with state governments. Earlier, planning commission was excluded from the interference from the states, but इसमें क्या है, इसको शामिल किया गया है। It is established with the aim to achieve sustainable development goals with cooperative federalism by fostering the involvement of state governments of India in the economic policy making process using a bottom-up approach. Its initiatives include 15-year roadmap, 7-year vision, strategy and action plan, Amrit Digital India, Atal Innovations Missions, medical education reform, agricultural reforms। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है, जैसे मॉडल लैंड, लीजिंग लॉ, रिफॉर्म्स ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स, इंडेक्स फॉर रैंकिंग स्टेट्स, राइट। सो इन नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी बेसिक फीचर्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के बेसिक फीचर्स क्या हैं? नीति आयोग बेसिकली रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच द प्रीवियस प्लानिंग स्ट्रक्चर कमीशन स्ट्रक्चर लैक्ड। अब इसमें नीति आयोग क्या करता है, सभी स्टेट गवर्नमेंट को साथ लेकर चलेगा। पहले जो प्लानिंग कमीशन था उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई रोल नहीं था, ज़्यादा रोल नहीं था, बहुत मिनिमल सा रोल था उसमें। तो स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि अगर स्टेट स्ट्रांग होंगी तो कंट्री अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ बीइंग इन ए कंट्रोलिंग सीट, इट इज़ गोइंग टू बी ए प्रोवाइडर ऑफ बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स। जो पुराना प्लानिंग कमीशन था वो क्या था, एक कंट्रोलिंग बॉडी थी, सभी कुछ जो फाइनेंसेस थे और देश के लिए जो प्लानिंग करना था होता था वो प्लानिंग कमीशन के हाथ में होता था। ये इसमें आम पब्लिक को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता था, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी रोल बहुत कम होता था। बट नाउ जो नीति आयोग है, नीति आयोग एक कंट्रोलिंग सीट नहीं है, अब क्या है, वो पॉलिसी बनाने के फील्ड में प्रोवाइडर की तरह काम करेगा। पॉलिसी कैसे बनेंगी, पॉलिसी क्या होंगी और पॉलिसी बनाने में क्या कैसे बनेंगी, डायरेक्शन क्या होगा, इसको करने में हेल्प करता है नीति आयोग। नीति ब्लॉग्स प्रोवाइड्स पब्लिक एक्सेस, इसके लिए नीति ब्लॉग्स बनाए गए हैं जहां पर गवर्नमेंट, जो नीति आयोग है वो बहुत सारे आर्टिकल्स, फील्ड रिपोर्ट्स और साथ ही साथ पब्लिक ओपिनियंस, ये सब पब्लिक के साथ शेयर करते हैं ताकि लोग अपनी ओपिनियन दे सके
और उसमें से बेस्ट ओपिनियंस जो है जो नीति आयोग के जो एक्सपर्ट्स हैं उन बेस्ट ओपिनियंस को चूज़ करके तब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स बनाएंगे। ये डिफरेंस है। प्लानिंग कमीशन की जो प्लानिंग होती थी वो हाईली कॉन्फिडेंशियल होती थी, एक आम आदमी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाता था। लेकिन अभी नीति आयोग में सब कुछ क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ये नीति आयोग का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग एंड कंपोजिशन वी कैन सी बाय zooming द स्लाइड। वी कैन सी प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन। गवर्निंग काउंसिल में कौन होगा, CMs, ऑल द स्टेट्स, द CMs ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। रीजनल काउंसिल जो होगी इसकी, उसमें कौन लोग होंगे, फॉर्म्ड ऑन नीड बेसिस, अगर ज़रूरत है रीजनल काउंसिल की तो ही बनाई जाएगी। उसमें क्या है, कंप्राइजिंग CMs एंड लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट्स ऑफ द रीजन। सपोज करो गोवा एक बहुत छोटा स्टेट है, वहाँ पर ज़रूरत नहीं है रीजनल काउंसिल की, तो वहाँ नहीं बनाई जाएगी। अगर लगता है वहाँ ज़रूरत है तो बनेगी, तो उसमें ये सब लोग मेंबर्स होंगे। इसके अलावा इसके दो टाइप के मेंबर्स होते हैं, एक फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, एक टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं। पार्ट टाइम मेंबर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, बट they will be in rotation from relevant institutions. Then ex officio member कौन होंगे, मैक्सिमम 4 होंगे। इनको हम इनवाइटी भी, इनको हम जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं ये परमानेंट मेंबर होते हैं इसके। फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय PM, इनको PM नॉमिनेट करेगा। हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से होंगे और मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। स्पेशल इनवाइटीज़ में हैं एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट्स, प्रैक्टिशनर्स विद डोमेन नॉलेज, जिनको अपने अपने फील्ड की या जिस एरिया से उनको सेलेक्ट किया गया उस एरिया की उनको एक्सपर्ट नॉलेज होगी, वो लोग होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा अपॉइंट, जिसको हम CEO बोलेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO। इट वाज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। देन सेक्रेटरीट, इस CEO का एक ऑफिस होगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसका ऑफिस होगा और उसको सेक्रेटरीट बोला जाएगा। तो ये क्या है, ये इसका कंपोजिशन है नीति आयोग का। अब देखिए इसमें, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी प्रेजेंट मेंबर्स में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस श्री नरेंद्र मोदी, देन वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, CEO जो है एट प्रेजेंट अमिताभ कांत हैं। बाकी इसके जो मेंबर्स हैं डिफरेंट फील्ड से हम देख सकते हैं, इकोनॉमिस्ट में विवेक ओबराय और DRDO यानी कि डिफेंस जो हमारा है वहाँ से VK सारस्वत, देन रमेश चंद्र फ्रॉम एग्रीकल्चर। स्पेशल इनवाइटीज़ में नितिन गडकरी, आवर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स स्मृति जुबिन ईरानी एंड थावरचंद गहलोत, दीज आर स्पेशल इनवाइटीज़। Now we can see functions and roles of Niti Aayog. To evolve a shared vision of national development with the active involvement of state. The main aim of Niti Aayog is to make country more developed with the use of new technology and with new innovations along with the involvement of the states. To develop credible plans at the village level and aggregate these at higher levels of government. मीन्स बिल्कुल नीचे के लेवल से, विलेज लेवल से डेवलपमेंट की जाएंगी और जो डेवलपमेंटल स्कीम्स होंगी उनको मॉनिटर किया जाएगा कि वेदर दे आर इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपरली और नॉट। फिर नीचे से जो स्कीम्स हैं उनको ऊपर की तरफ लागू किया जाएगा अप टू द लेवल्स ऑफ हायर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमारे देश में एज यू नो ऑल द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म इज अ कंट्री वेयर the levels of governments are 2 or more than 2. So our federalism system could be more cooperative. So they have involved all the states in it on a continuous basis, recognizing that strong states makes a strong nation. So dear students, suppose if each and every state is independent and developed, then definitely country automatically will be developed and more progressive, isn't it? Another functions
and role, we can see to focus on technology upgradation. As you can see, Narendra Modi's plan to make digital India, the use of technology, development with the help of use on technology. So more focus have been given on technology upgradation and implementation of programs and initiatives to encourage partnership between national and international like-minded, those people who are progressive minded and those who can think about out of the boxes. They are invited, and they were known as think tanks as well as educational and research institutions to create innovations and entrepreneurial support system through national or international expert to make our industries, our enterprises more progressive, more we can say rich and more dynamic. Experts from in national level and international level are also invited to give their valuable advices, to pay special attention to the sections of our society that may not be adequately benefiting from economic progress. According to this scheme, more focus have been given on those people who are not benefiting earlier by the economic policies of the government. उन लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया जिनको कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट नहीं मिल पाया है, तो उन लोगों को के ऊपर ज़्यादा उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर इसका स्ट्रेस दिया है इस स्कीम में. टू ऑफर अ प्लेटफॉर्म ऑफ रेसोल्यूशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके आपस के इश्यूज जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये नीति आयोग एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है. यहाँ पर आकर, इस आयोग में आकर यहाँ पर लोग डिस्कशन करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, अलग अलग पोर्टफोलियोज के लोग. टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर. A state of art resource center means best use of human resources and their mind. So Niti Aayog has become a center of to best use of the human resources, to actively monitor the implementation of programs and initiative. An efficient system of monitoring has been इम्प्लीमेंटेड बाय दिस स्कीम, कि अब जो भी स्कीम बनेगी उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, कि वो सिर्फ क्या होगा, एक पेपर के ऊपर बनी हुई स्कीम नहीं होगी, उसको ये भी चेक किया जाएगा वेदर इट इज़ सीरियसली इम्प्लीमेंटेड और नॉट. यानी कि सभी स्कीम्स की, सभी जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उन सब की क्या होगी, प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी और उसके अकॉर्डिंग इनिशिएटिव्स भी लिए जाएंगे. टू अंडरटेक एक्टिविटीज़ नेसेसरी फॉर नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा. देश की तरक्की के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए जो भी ज़रूरी है ऐसी एक्टिविटीज़ को बनाया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा. Now we can see the key difference between प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग. अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये सब तो प्लानिंग कमीशन भी करता था, फिर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है. बेटा, अगर हम इसके प्लानिंग कमीशन के बारे में अच्छे से जानते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. अभी जो आप लोग स्टूडेंट्स स्कूल में ATL लैब में जाते हैं, वहाँ पर आप जो भी सीखते हैं ये भी इस नीति आयोग की ही एक न्यू इनोवेशन है, कि जो टेक्नोलॉजी है उसका कैसे यूज़ करके, बेस्ट यूज़ करके हम कंट्री को डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जा सकते हैं. तो उन सब लोगों को ये इनवाइट करते हैं जो एक बेस्ट आइडिया दे सकते हैं. इन फाइनेंशियल क्लाउड, इफ़ वी सी द अप्रोच ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग at financial ground, we can see that there are many differences. Earlier the financial issues were completely handled by the planning commission. जो फाइनेंसेस इश्यूज होते थे वो पूरी तरह से प्लानिंग कमीशन के कंट्रोल में होते थे, कि किस प्लान पर कितना पैसा खर्च करना है, ये पूरी तरह से उनके कंट्रोल में होता था.
बट नाउ नीति आयोग तो एक स्ट्रेचरी बॉडी है एडवाइस देने के लिए, तो यहाँ पर फाइनेंशियल जो उसकी रिकमेंडेशंस होती हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं है। वो रिकमेंड कर सकती है गवर्नमेंट के, इट इज़ कम्प्लीटली ऑन द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट उसके द्वारा रिकमेंड की हुई जो भी हैं चीज़ें उनको एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट बाय द नीति आयोग, राइट। प्लानिंग कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल बिल्कुल नहीं था या फिर बहुत कम था, लेकिन अभी नीति आयोग में स्टेट गवर्नमेंट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे थॉट दैट द स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन, राइट। उनका कहना है कि अगर सभी स्टेट्स प्रॉस्पेरस होंगी, रिच होंगी, तो कंट्री ऑटोमेटिकली अपने आप डेवलपमेंट के रास्ते पर चल पड़ेगी। इनकी अगर हम यहाँ पर ये 2 ट्रायंगल्स दिए हैं, वी कैन सी द अप्रोच स्ट्रेटेजी, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन दीज 2 प्लानिंग, द अप्रोच ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड अप्रोच बाय नीति आयोग। नीति आयोग की जो अप्रोच है वो क्या है, बॉटम अप अप्रोच है, यानी कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना है और उसको ऊपर की तरफ तक लेकर, हायर लेवल तक लेकर जाना है। बट यहाँ पर जो प्लानिंग कमीशन था उसका बिल्कुल अपोजिट था। प्लानिंग कमीशन एक बहुत ही हायर इंस्टीट्यूशन थी, तो अपर लेवल से स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाता था और फिर उनकी जो ड्यूटीज़ होती थी वो लोअर लेवल पर असाइन की जाती थी, तो सब अपना अपना काम करते थे। तो वी कैन सी द डिफरेंस। इसकी टॉप डाउन अप्रोच थी प्लानिंग कमीशन की, बट in this new Niti Ayog we can see the bottom up approach from the very grassroots level up to the higher level. Achievement and accomplishment of Niti Ayog, we can see clearly here that what are the achievements of, compared to Planning Commission which was 64-year-old when replaced by Niti Ayog, which is in इन्फेंसी। नीति आयोग क्या है, अपने अभी स्टार्टिंग के फेज में है, अपने एक बचपने में है, इन्फेंसी में है, बट द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ए हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशन। लेकिन जब एक कोई बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन होती है, चाहे उसको बने हुए कितना भी थोड़ा समय हुआ हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एज, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमेशा इस अच्छी इंस्टीट्यूशन से हमेशा हाई होती हैं लोगों की एक्सपेक्टेशन। Irrespective of its age are always high. Some of its achievement in this 2 year of working are stated below. 2017 के बाद से 18 से इसको स्टार्ट किया गया है, तो हम देख सकते हैं कि 2 साल में उसने क्या क्या अचीव किया है। ऑन इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसने सबसे ज़्यादा काम किया है न्यू इनोवेशंस पर, और जितनी भी हमारी बिग इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इसके लिए प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी इनवाइट किया है। पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, बिग इंडस्ट्रीज़ वर कंट्रोल्ड बाय पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। सेकंड है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी सेक्टर, उसने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देश का पूरा, सड़कें हैं या जो हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत इन्वेस्ट किया है। साथ ही साथ एनर्जी सेक्टर पर नए थर्मल और पावर प्लांट्स लगाए गए हैं, सो दैट एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री कुड इलेक्ट्रीफाइड। ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सभी स्टेट गवर्नमेंट को शामिल करके फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव बनाया है। ऑन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी को और न्यू इन्वेंशंस को इसमें हम सबसे ज़्यादा देख सकते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो बेनिफिट हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इसमें शामिल की गई हैं। डिजिटलाइजेशन मूवमेंट, डिजिटल इंडिया, जैसे आधार कार्ड से जोड़ दिया है, हर चीज़ को डिजिटल कर दिया है ना, बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं अब हमारे लिए, बैंकिंग सिस्टम को इसके साथ इन्वॉल्व कर दिया गया है। इंक्रीज इन एफडीआई मीन्स फॉरेन direct investment. Many MNCs, due to globalization, many MNCs has been invited to our country to share its profit, राइट। तो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई है गवर्नमेंट ने, बहुत सारी विदेशी कंपनियों को अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनवाइट किया गया है। तो ये कुछ अचीवमेंट हैं जो बहुत थोड़े से समय में 2 साल में नीति आयोग ने
दिखाए हैं करके, लेकिन on different grounds it is also criticized and it also face many challenges. Sustaining a growth of 7.5%, 7.5% जो ग्रोथ रेट होता है बहुत अच्छा माना जाता है एक ऐसी कंडीशन में जबकि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, शोज दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नीति आयोग इज़ ऑन द राइट ट्रैक। तो ये जो जिस हिसाब से इसकी प्रोग्रेस हुई है तो उससे ये लग रहा है कि नीति आयोग अपने राइट ट्रैक पर है, जिस पर्पज़ के लिए इसको फॉर्म किया गया था वो सही है। However, critics of the new setup criticized it and some termed it as an old wine in a new bottle. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। Though some critics have also argued positively, कुछ इसको पॉजिटिवली करते हैं, कुछ नेगेटिवली करते हैं। तो इसमें जो कुछ चैलेंजेस हैं जो नीति आयोग को फेस करने पड़ रहे हैं इसके बारे में जो कहा जाता है, एक तो ये लोग ये बोलते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कि इसको बनाने के लिए कोई सिस्टमेटिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं किया गया, कोई बिल पास नहीं किया गया, तो इसको बनाने की ज़रूरत क्या थी, प्लानिंग कमीशन था तो सही। दूसरा कहते हैं नॉन ऑब्लिगेटरी, यानी कि ये एक एडवाइजरी बॉडी है, तो इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट वेदर दे एक्सेप्ट इट और नॉट टू एक्सेप्ट इट, राइट। देन दे कंपेयर इट टू अगेन विद प्लानिंग कमीशन, कि अगर इसकी वो नहीं है, इसकी रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट के लिए मानना ज़रूरी नहीं है, तो फिर इसको बनाने की क्या ज़रूरत थी। कुछ लोग कहते हैं इसका बायस्ड नेचर है, कुछ ही स्टेट्स को इसका बेनिफिट मिल रहा है, कुछ ही स्टेट्स के लिए ये ज़्यादा रिकमेंडेशन भी करता है गवर्नमेंट को, अगर रूलिंग पार्टी के फेवर में है तो इसको बायस्ड नेचर का कई बार बोला जाता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन टिल डेट लिमिटेड ओनली टू सम स्टेट्स, जो स्कीम्स हैं इसकी जो प्लानिंग्स हैं उनका कहना है कि कुछ ही स्टेट्स को इसका बेनिफिट मिला है, नॉट ऑल द स्टेट गेटिंग बेनिफिटेड बाय दिस Niti Ayog. So we can see some challenges and criticism which Niti Ayog has to face. Conclusion, at last we can see the conclusion. However, it is too early to comment on the efficacy of the new institution. अभी इसके बारे में कुछ भी बहुत गलत बोलना बहुत जल्दीबाजी होगी, बिकॉज इसको अभी 2 ही साल हुए हैं। It has to cover a long way in front of it. Of new institution related to planned development, something is possible when it shifts gears and moves into operation seriously. ये कहते हैं कि इसमें और बूस्ट और इम्प्रूवमेंट तब आएगा जब इसमें जो इसकी जो प्लानिंग है, जो स्कीम्स हैं उनको सीरियसली इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऑपरेशनल होंगी जब वो। However, the present move to decentralize planning and allowing inputs from state to guide it appears to be a positive and effective steps. लेकिन जिस तरह से स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट किया गया है ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव स्टेप नज़र आता है। बट नीति आयोग विल ऑलवेज रिमेन ए हॉट बेड पॉलिटिकल टॉपिक विद एम्बिगुअस ओपिनियन, लेकिन ये हमेशा ही एक हॉट डिबेटेबल इशू रहेगा, क्योंकि इसकी जो नीति आयोग क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है, इसके द्वारा रिकमेंड की गई जो सिफारिशें हैं या जो भी चीज़ें हैं उसको गवर्नमेंट के लिए मानना ज़रूरी नहीं है। तो ये हमेशा जो है इसके ऊपर लोग अपने अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस देते रहते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, राइट। तो आई थिंक बेटा दिस इज़ क्लियर टू यू अबाउट नीति आयोग. Niti Ayog is replaced by Planning Commission with a new face, with innovations to evolve a shared vision of national development priorities, sectors and strategies with the active involvement of states in the light of national objectives. To foster cooperative federalism through structured support initiatives and mechanism with the states on a continuous basis, recognizing that strong states make a strong nation. Right? Thank you.